पश्चिम बंगाल के प्रोफेशनल एकेडमिक संस्थानों के संगठन एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वेस्ट बंगाल ने कोलकाता में APIWD प्री काउंसलिंग एंड एजुकेशन फेयर 2026 का आयोजन किया। इस मेले में विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एक साझा मंच पर लाकर उच्च शिक्षा एवं भविष्य के कैरियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान। Being felicitated by the President of APAI, Association of Professional Academic Institutions West Bengal, Sir Dr. Ranjit Singh. So can we all put our hands together for this wonderful moment, and thank you so much, sir, for your gracious and valued presence over here. With a flower bouquet and token of honor and gratitude. I would also request our Honorable President, hands together. Thank you so much, sir, for your illustrious presence over here. Professor Tapas Chakrabarty, Vice Chancellor of Macau, being welcomed and greeted by Sir Dr. Ranjit Singh, President of APAI. I would also request now our Honorable Dr. Gautam Pal will be felicitated by the Honorable President of APAI. Thank you so much, sir, for your presence. Being felicitated with the traditional Victorio, a bouquet of flowers, and a token of honor. Thank you so much, sir, for your presence. I would also request your illustrious appearance. So after the felicitation, can we all put our hands together? We can see distinguished dignitaries have assembled for a wonderful beginning of the APAI Pre-Counseling and Education Fair 2026. And with this, we would also have the release of the APAI information brochure. I would request all our honorable dignitaries up on the dais to kindly line up for details of the different colleges under West Bengal, different engineering and management colleges under APAI in West Bengal. So we would request all the dignitaries to please be on. So कितने काउंटर है? आपने कितने काउंटर बनाए हैं बच्चों को देने के लिए? बहुत भीड़ हो रही है। 4 काउंटर है मैम, 4 काउंटर है, फिर भी इतनी भीड़ है। ये VVIP ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं है। सरदार तरनजीत सिंह महाशय, APAI जनरल सेक्रेटरी श्री सत्यम रायचौधरी महाशय, प्रोफेसर तापस चक्रवर्ती वाइस चांसलर मैकाउ, श्री तपन कुमार घोष वाइस प्रेसिडेंट APAI, श्री तरुण भट्टाचार्य सेक्रेटरी BC रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रोफेसर मानसी रायचौधरी को चेयरपर्सन टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, श्री सागर अग्रवाल जिन्हें दयाल ग्रुपेर दायित्वे आছেন, श्री सत्यम सेठ सायंतन सेठ सॉरी वाइस चेयरमैन हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी HIT, प्रदीप अग्रवाल CEO इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर डॉक्टर गौतम पाल जॉइंट वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस बोर्ड चेयरमैन, डॉक्टर दीपेंदु कौर रजिस्टर वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस बोर्ड,
সামনে উপস্থিত সম্মানীয় শ্রোতাগণ এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, কি শোনা যাচ্ছে তো? শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। তাহলে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি যে আপায়ের তরফ থেকে যে এডুকেশন ফেয়ার 2026, আমি যারা এই উদ্যোগ নিয়েছে তাদের সকলকে, আপায়ের যারা কর্মকর্তা আছে তাদের সকলকে আমার তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। কারণ এই ধরনের এডুকেশনাল ফেয়ার স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা ধারণা উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিশেষত তাদের মধ্যে তৈরি করতে এখন শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে NEP 2020-তে স্কিল গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে। তো স্বাভাবিকভাবে আমাদের যে সমস্ত এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট আছে তাদেরকেও স্কিল বেসড প্রোগ্রামকে আরো বেশি করে রান করা, আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরকে স্কুল লেভেল থেকে ক্লাস 8 থেকে যাতে তারা কোনো না কোনো স্কিলের সাথে নিজেকে পরিচিত করতে পারে এবং আগামী দিনে সেই স্কিলকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই ধরনের পরিবর্তন করা পশ্চিমবঙ্গ সরকার অলরেডি শুরু করে দিয়েছে এবং সেটাই আগামী দিনে শিক্ষার ভবিষ্যৎ। दादा, आपने कहा कि एजुकेशन अभी हम बहुत अच्छे से और भी डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन अभी इस तरह से हो रहा है कि कई यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन ही नहीं हो रहा है। उन सब का आप क्या करेंगे? उन बच्चों का भविष्य आप कैसे सुधारेंगे? देखिए, बहुत जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। बहुत दिनों से पश्चिम बंगाल के यूनिवर्सिटीज में VC के कैसे बनेंगे, VC का कैसे ये होगा, नियोग होगा, उसको लेकर केस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप किया है। अभी सरकार डबल इंजन सरकार होने के कारण दोनों पार्टी अगर आगे जाने वाले समय में कोर्ट में जाकर अगर बोलते हैं कि हम में कोई मतभेद नहीं है, तो मुझे लगता है ये सोल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा। और एक बार अगर VCs जो है ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी जो होते हैं, वो उनका काम है कन्वोकेशन कराना। तो जब VC नहीं रहेंगे तो कन्वोकेशन कैसे होगा? तो ये VC में जो अड़चन बना के रखने का काम पिछले सरकार ने किया था, क्योंकि पिछले सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि सारे यूनिवर्सिटीज के चांसलर खुद ममता बनर्जी CM सब मैडम होंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। धन्यवाद सर। ये पाई वाले जो कार्यक्रम में आपने किया है, इसके बारे में लोगों को जरूर जानकारी दो। पाई लास्ट 25 ईयर से झगड़ा हो रहा है कि काउंसलिंग के साथ शुरू होता है। जैसे काउंसलिंग शुरू होता है उसके पहले प्री काउंसलिंग के अंदर में हम बच्चे को अवेयरनेस करते हैं कि कौन कॉलेज में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। बच्चे लोग इस प्लेटफॉर्म में आके सब कुछ सीख सकते हैं। उनको पता चल जाता है कि वेस्ट बंगाल में इतने कॉलेज हैं और ये स्ट्रेंथ है। एक एक कॉलेज में जाना मुश्किल हो जाता है, तो सबका प्रोग्राम हम लोग 3 दिन का इस साल जो है हम लोग 2 दिन का किया है कि लोगों को। सर, अभी कितने लोग यहाँ पर, कितनी एजुकेशन सोसाइटी आई हुई है? 100 लोग पर आई हुई है। 100 क्या? आप लोग जो काम कर रहे हैं, और आज मंत्री भी बोल रहे थे कि अभी बहुत ज्यादा हम लोगों को काम बाकी है, तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? काम जो बाकी है हम लोग को तो गाइडलाइन मानना है। मार्कआउट गाइडलाइन आएगा, हम लोग गवर्नमेंट को तैयार करेंगे। सिलेबस को जो है चेयरमैन ने साहब सिलेबस जल्दी बनाइए, जिससे कि जल्दी सिलेबस चेंज होगा, इंडस्ट्री के मुकाबले नौकरी ज़्यादा मिले। सर, एजुकेशन की जिस तरह से पढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए जिस तरह से दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसमें बच्चे लोग के जो माँ बाप है वो कई बार अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? पहली बात है कि वेस्ट बंगाल का एजुकेशन पूरे स्टेट से सस्ता है और विदेशों में बहुत ही सस्ता है, और वेस्ट बंगाल में उड़ीसा से भी सस्ता है। तो बात है कि अब इसके अलावा भी आजकल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कई स्कीमें हैं बच्चों के लिए। बैंक लोन के लिए भी अरेंजमेंट है और कई स्कीमों में बच्चों को डिस्काउंट भी मिलता है, तो उसमें लाभ करने से लगेगा। इसलिए आज के दिन में बच्चे एजुकेशन पढ़ पा रहे हैं।
सर आपका शुभ नाम है? तरनजीत सिंह, अपाई प्रेसिडेंट। आज के समय एजुकेशन को देख के आप क्या बोलना चाहेंगे? एजुकेशन की क्या पॉलिसी है जिससे कि इस समय बच्चे उतना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए? तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा। सो टुडे ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ द अपाई pre-counseling fair, one very good point was raised by our member of parliament, Mr. Shukanta Mujumdar, that with the new education policy coming up, inter-department disciplinary course have to start. Now you see all these colleges, all the stalls here, most of the colleges are still running single discipline course like BTech in mechanical engineering, BTech in civil engineering, but very less opportunities there where a BTech in mechanical engineering can study certain subjects of civil or computer science or electronics, because unless today's world you know multidisciplinary subjects, it is very difficult to work in the actual company environment. So the national education policy has chalked out this thing. This has been there for in the world for 30-40 years now. I have myself studied in Germany, I know that, and that 25 years back. So this was there. A history guy can study computer science and history at the same time. Thankfully, in India it has come very late, but it has come. Now Bengal has to adopt this. If Bengal can adopt this, वीवीआईटी की जो कॉलेज है इंजीनियरिंग की, उसमें अभी आपके बच्चे कितने पढ़ रहे हैं और वो क्या आप पढ़ा रहे हो जिससे बच्चों को प्रोग्रेस हो रही है? ओके, जो पढ़ा रहा हूँ उससे पहले बोले बच्चा हमारे पास 2000 प्लस, ठीक है, वीवीआईटी का कॉलेज का जो बच्चे हैं, और पढ़ाने के लिए जो हम लोगों का सब्जेक्ट है, हम लोग डिप्लोमा भी कराते हैं, बीटेक कराते हैं, बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमटेक, ठीक है। इसमें हम लोग जो आज का जमाना में आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट है जो कोर सब्जेक्ट, जो जिंदगी में कुछ भी करना है तो कोर सब्जेक्ट रहेगा, वो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रहेगा। तो ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। इन सब्जेक्ट के साथ आपके बच्चे कितने होना निकल रहे हैं, उनके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? हाँ, उसका रिजल्ट जो देखेंगे, रिजल्ट बोलेंगे तो बच्चे सब पास करते हैं, ऐसा नहीं है। जो एडमिशन लेते हैं 100% पास करता है, नहीं है।